Polymerase chain reaction is a technique which is used to amplify small segment of DNA. It is a laboratory technique which is used to make multiple copies of a segment of DNA. PCR is a very precise and can be used to amplify a copy, a specific DNA target from the mixture of DNA molecules. जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है वो एक ऐसी टेक्निक होता है जो कि यूज होता है अगर कोई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है और अगर उस डीएनए की अगर हमको कॉपी बनानी है तो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होता है और अगर हमें सेगमेंट ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो वो हम परफॉर्म करते हैं। पीसीआर जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, कॉपी करता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए है, अगर उसमें से कोई एक पार्ट का डीएनए अगर आपको कोई एक पार्ट है जिसको आपको कॉपी करनी है तो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। पीसीआर जो इन्वेंट किया गया था बाय कैरी म्यूलिस एट 1953, ही इज अ अमेरिकन बायोकेमिस्ट और इसके लिए म्यूलिस को और बायोकेमिस्ट माइकल स्मिथ हु हैज डेवलप्ड अदर एसेंशियल वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग डीएनए both are jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1993. This is a Carey Mullis receiving Nobel Prize for the invention of PCR in the field of chemistry in 1993. Any region of any DNA molecules can be chosen as long as the sequence at the border of the region are known. The border sequence must be known because in order to carry out PCR, two short oligonucleotides must hybridize to the DNA molecules, one to each strand of the double helix. These oligonucleotides, which act as a primers for the DNA synthesis reaction, delimits the region that will be amplified. Amplification is usually carried out by the DNA polymerase first enzyme from Thermus equenticus. तो जब भी polymerase chain reaction परफॉर्म करते हैं उसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वह है बॉर्डर सीक्वेंस का नोन होना, तभी टू शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड मस्ट जो वो बनते हैं और वो जाके हाइब्रिडाइज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के साथ और फर्दर डबल हेलिक्स डीएनए जो है वो बनाते हैं। इन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को हम प्राइमर कहते हैं, ठीक है, और ये डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एम्प्लीफिकेशन जो कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज, और ये एंजाइम जो मिलता है वो मिलता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेंटिकस। Thermus equenticus is a species of bacteria that can tolerate high temperature, one of several thermophilic bacteria that belongs to the Dinococcophilum. This bacteria found in hot spring. It is the source of the heat resistance enzyme Taq DNA polymerase, one of the most important enzyme in molecular biology because of its use in the molecular chain reaction, polymerase chain reaction, DNA amplification technique. In 1969, Thomas T. Brock and Hudson Fries of Indiana University reported a new species of thermophilic bacteria which they named Thermus equenticus. तो ये है Thermus equenticus, बेसिकली ये हॉट स्प्रिंग एरिया में पाया जाता है और इसकी सबसे अच्छी एबिलिटी जो होती है जो हमारी हेल्प करती है वो है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है और ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है और यहीं से हमको क्या मिलता है एंजाइम विच इज टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि क्या होता है हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है। This is a bacteria, Thermus equenticus. Thermus equenticus is generally of cylindrical shape with a diameter of 0.5 micrometer and 0.8 micrometer. This Thermus equenticus show best growth at 65 to 70 degrees Celsius, but can survive at temperature of 50 to 80 degrees Celsius. वही है कि जो हमारा Thermus equenticus होता है वो 65 to 70 डिग्री मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे ये ग्रोथ करता है अच्छा, बट ये इसके अलावा भी 15 to 80 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है। It primarily scavenges for protein from its environment as it evidenced by the large number of extracellular and intracellular process and peptides as well as transport protein for amino acid and oligonucleotide across its cell membrane. This bacteria is chemotroph. It performs chemosynthesis to obtain food. Thermus equenticus is a source of thermostable DNA polymerase. ठीक है, वही है कीमोट्रॉप है, कीमोसिंथेसिस से फूड को ऑब्टेन करता है और ये क्या है कि थर्मस एक्वेंटिकस जो है वो क्या है थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है और इससे हमें टैग पॉलीमरेज मिलता है। ये हॉट स्प्रिंग एरिया है जहाँ पे बेसिकली हमारा थर्मस एक्वेंटिकस पाया जाता है। फिर आता है एंजाइम जो यूज होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जिसको हम बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्यों यूज होता है, बिकॉज ये क्या है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है named after thermophilic eubacterial microorganism Thermus equenticus, ठीक है।
इसको हम टैक या टैक पोल बोलते हैं. It is frequently used in the polymerase chain reaction, a method for greatly amplifying the quantity of short segment of DNA. ठीक है. टैक ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्टिविटी 75 to 80 डिग्री सेल्सियस, वही जो थर्मस एक्वेंटिकस ग्रो करता है, विद द हाफ लाइफ ऑफ ग्रेटर देन 2 आवर एट 95.5 डिग्री सेल्सियस, 40 मिनट एट 95 डिग्री सेल्सियस एंड 9 मिनट एट 97.5 डिग्री सेल्सियस, and can replicate 1000 base pair strands of DNA is less than 10 seconds at 72 degrees Celsius. At 75 to 80 degrees Celsius, TAC reaches its optimal polymerization rate of about 150 nucleotide per second per enzyme molecules, and any deviation from the optimal temperature range inhibits the extension rate of the enzyme. A single TAC synthesis about 60 nucleotide per second at 70 degrees Celsius, 24 nucleotide per second at 55 degrees Celsius, and 1.5 nucleotide per second at 37 degrees Celsius, and 0.25 nucleotide per second at 22 degrees Celsius. At a temperature above 90 degrees Celsius, TAC demonstrate very little or no activity at all, but the enzyme itself does not denature and remain intact. वही है कि ये बता दिया कि कितने टेम्परेचर पे ग्रो करता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर स्ट्रैंड बनाता है डीएनए इन लेस देन 10 सेकेंड एट 72 डिग्री सेल्सियस, और ये बता दिया कि अबाउट 60 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पे करता है, 24 पे कितना करता है, ये सारी चीजें. ठीक है. अगर ये टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे है तो भी ये क्या करता है, इंटैक्ट रहता है, एक्टिविटी करे या ना करे. ठीक है. मतलब इसका प्रोटीन जो है वो डिनेचर नहीं होता है. प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आयन इन द रिएक्शन वेसल आल्सो affect specific activity of the enzyme. Small amounts of potassium chloride and magnesium ion promote TAC enzyme activity. तो अगर आपका जो भी रिएक्शन है अगर उसमें पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम आयन है तो वो क्या करता है, TAC की एक्टिविटी को क्या करता है, प्रमोट करता है. This is a DNA polymerase first thermostable larger cluno fragment of TAC poly containing the poly and vestigial domain. This is a TAC polymerase. Okay. And this is a properties and application of thermostable DNA polymerase. So TAC DNA polymerase के अलावा भी कई सारे polymerase हैं जैसे TAC stophyl fragment, R-TITH, TFI. ठीक है. ये इनकी मैन्युफैक्चर कंपनी है. जैसे TAC थर्मस एक्वेंटिकस से पाया जाता है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री सेल्सियस है, और जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो 5 प्राइम 3 प्राइम है. टैक स्टोफिल फ्रैगमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है पीई में. ऑर्गेनिज्म है थर्मस एक्वेंटिकस. ऑप्टिमम टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नन है. R-TITH, BMETPE, थर्मोफिलस 75 डिग्री सेल्सियस और 5 प्राइम टू 3 प्राइम. TFI भी प्रो मैन्युफैक्चर होता है, टी फ्लेवर्स से पाता है 70 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नन है. तो ये मतलब कि टैक डीएनए पॉलीमरेज तो बेसिकली यूज होता है, बट इसके अलावा भी कई सारे और भी पॉलीमरेज हैं जो कि यूज्ड होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आई विल मेक द सेगमेंट डिफरेंट segment for the other TAC DNA polymerase are the polymerase which are used in the PCR. Okay, so next video we will learn about the primer properties. Thank you.